like to quickly draw your attention to welcoming publisher media. Aware that there is a side effect to that, which is the tigers have become man-eaten, and that is in Sundarbans. There are 45 islands. और आपका नीयत अच्छी होनी चाहिए और मुझे मेरे इस काम के लिए सर्वाइकल कैंसर, स्पेशली जो मैं ट्राइबल एरिया में काम कर रही हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हूँ, उसके लिए मुझे राष्ट्रपति जी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति से आमंत्रण आया। मैं राष्ट्रपति भवन में जाकर उनसे मिली और इस विषय में हमने काफ़ी चर्चा हुई और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। And of course, he has enthralled us with his roles in all sorts of cinema, be it Hindi, Telugu, Tamil, Kannada, and wow, the list goes on and on. The movies, he needs absolutely no introduction. But today, he's here to talk to us about, as we all know, giving back. And he is, as we all lovingly call him, the messiah for so many families, and he has proved himself to be the real hero. Firstly, thank you so much for joining us. Can we please have him on mic, please? Good evening and welcome, Sonu. Thank you so much for being here. Hi, good evening everyone, and this is one moment that always makes me nervous. I don't know what to say, but it's an honor sitting with all the people who have been doing so much for the society. You know, I always believe that I wish there was a formula that we all knew that how we can give back to the society. You know, everyone thinks कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा बन जाऊँ, पैसे बहुत बना लूँ, नाम बहुत कमा लूँ, उसके बाद then I start giving back to the society. But I don't buy that. I think the biggest lesson that I learned during pandemic was that you just have to have faith in yourself and automatically things start, you know, they start happening. Most of the people who are actually in our foundation, you know, I remember when I know Niti since so many years, you know, as kids we have known each other. लेकिन हमारी दोस्ती और मजबूत तब हुई जब हम लोगों ने साथ में मिलके काम करना शुरू किया। उससे और ज़्यादा एक ऐसा रिश्ता बने, एक ऐसा बॉन्ड बने, एक ऐसी सोच बनी कि यू नो मंजिल एक है, साथ में चलना है, ज़िंदगियाँ बदलना है और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते बदलते अपनी भी बदली। You know, I remember I finished my engineering from Nagpur, came to Mumbai as an actor, struggled all my life, always wanted to get famous, do a lot of characters, make my family proud. But then I realized the most important character that I played in my life was during pandemic when, you know, Almighty was the director and I was playing the most important role of my career, and I still pray every single day that this shouldn't end because, you know, here there are no lights, no camera, only action. No action. So I keep my fingers crossed every day. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो बड़ी important चीज़ें होती हैं, दो बड़े important शब्द हैं, एक है उम्मीद और एक है कोशिश। कि जब लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आपसे अगर मिलेंगे तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी या फिर आप उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं या उनकी तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। लोग अभी भी मैं करीब 8-10 दिन शूट करने के बाद दिल्ली, जब मैं कल दिल्ली से आया वापस, तो मैं करीबन 10:30-11 बजे घर पहुंचा तो भीड़ लगी हुई थी लोगों के नीचे। तो उनको पता नहीं था कि मैं दिल्ली में हूँ या बॉम्बे में हूँ, लेकिन वो एक उम्मीद के साथ खड़े थे कि सोनू आएगा, मिलेगा। सो मुझे 1-1.5-2 घंटे लग गए वापस ऊपर घर जाने में। तो मैं कोशिश कर रहा सबकी तकलीफ़ें जानने में, लेकिन मैं थका पड़ा था, क्योंकि बिकॉज नॉन स्टॉप आई वाज शूटिंग फॉर 18-20 आवर्स एवरी सिंगल डे एंड आई वाज वेरी टायर्ड व्हेन आई रीच्ड। लेकिन जब मैं उन लोगों से मिला, वो सारी जो थकावट थी अपने आप दूर हो गई। आई वाज talking to them, listening to what the problem was, trying to speak to the doctors, trying to speak to people and channelize whole things। और मैंने रियलाइज किया ऊपर आके कि पता ही नहीं चला कि कब वो 1.5-2 घंटे बीते। इसलिए बीते क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग उम्मीद लगाकर बिहार, यूपी, उड़ीसा, उत्तराखंड कहाँ से पहुँचे हुए थे कि हम पहुँचते हैं। कोई अपना कूलर बेच कर आया था, कोई अपना साइकिल बेच कर आया था, कोई अपना फ़ोन बेच कर आया था कि हम सोनू से मिलेंगे और देखो शायद बदल जाएगा। और इमेजिन कि मैं उनसे मिले बिना ऊपर चले जाता तो मुझे शायद नींद नहीं आती। तो मैं ऊपर जब गया वापस पहुंचा ऊपर और 2-2.5 घंटे बाद करीबन 1:30-2 बजे मेरे वॉचमैन का नीचे से फ़ोन आया कि सर सॉरी आपको फ़ोन किया, लेकिन 2-3 लोग और नीचे रह गए मिलने वाले और उनके साथ छोटी सी बच्चियाँ हैं, 1-2 लड़कियाँ हैं, तो सारी रात बैठे रहेंगे। तो मैं फिर रात को 1:30 बजे नीचे आया उनसे मिलने के लिए। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है कि सर हम ऐसे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो उनके जो भी डिटेल्स लिए और मैं जब वापस आया सो आई रियलाइज कि ये सिर्फ ये नहीं कि मैं नीचे गया उनकी हेल्प कर दी, खत्म हो गया। मुझे कैसे अपने साथ लोग जोड़ने हैं,
कैसे ये इस ट्री को और बड़ा करना है ताकि लोग कहीं पे भी मेरी बिल्डिंग के सामने जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वहाँ पे ओकलैंड पार्क करके एक बिल्डिंग है, तो जब पूरा रश भर जाता है मेरे घर के, स्पेशली ऑन संडेज 500-700 आदमी हर रोज खड़े होते हैं, तो शुरू में बिल्डिंग वालों को बड़ी तकलीफ होती थी कि यार यहाँ पे देखो इतने लोग आ जाते हैं, ट्रैफिक बंद हो जाता है, लेन्स में हम लोग गाड़ी नहीं निकाल सकते, सोसाइटीज़ की आपको हाउ पाओगे कई बार प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मैं कोशिश करके अपने आप को मैन्यूवर कर थोड़ा सा कर रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम एडजस्ट कीजिए। और फिर एक बार सारी सोसाइटीज़ ने एक मीटिंग बुलाई कि यार सोनू को बुला के बोलते कि बहुत ऐसा चलेगा नहीं कि नीचे हमारी पूरी लेन जो होती है पैक हो जाती है, हम लोग निकलेंगे कैसे। सो आई वेंट देयर, पूरी सोसाइटी के लोग खड़े हुए थे और मैं भी खड़ा था बीच में, तो लेकिन किसी ने बोलना नहीं शुरू किया, सब जाने एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे, बट नो वन वांटेड टू स्टार्ट द टॉपिक कि यार बोले कौन इसको। तो मैंने बोला, मैं कि मुझे पता है कि आप लोगों ने क्यों मीटिंग रखी है, बिकॉज यू वांट कि यार ये रश क्यों हो जाता है, इतने लोग क्यों आ जाते हैं, आपकी गाड़ी निकलने में वक्त क्यों लगता है। सो आई सेड कि आप ये बात याद रखिए, वी आर लकी कि हम लोग गेट के इस तरफ हैं, गेट के उस तरफ कब पहुंच जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। वंडरफुल। सो लेट्स बी टुगेदर। इस लेन के अंदर बॉम्बे में हजारों सड़कें होंगी, हजारों लेन्स होगी, पर इस लेन के अंदर लोग उम्मीद लगा कर आते हैं, तो आप भी जुड़िए, एंड देन नो मोमेंट। अभी तो 3 साल हो गए उस चीज़ को चलते चलते। अभी उसी सोसाइटी के बहुत सारे लोग शाम को जब मैं जाता हूँ तो वो लोग भी मिलने आते हैं, तो उसको बोलते हैं भैया तो कैंसर वाले को संभाल, इसको बोलते हैं तो एजुकेशन वाले को संभाल, इसको बोलते हैं तो इसको संभाल, तो वो लोग ही साथ में रखते हैं। सो दिस इज हाउ, मुझे उनके नाम भी नहीं पता कि लोगों के। ऐसे ही छोटे छोटे शहरों में जब हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेज रहे थे, दवाइयाँ भेज रहे थे, तो ये वो लोग थे जो 200-250 रुपए की दिहाड़ी पे काम करते हैं, बट वो अपने बाइसाइकिल पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर 40-40 किलोमीटर दूर जा रहे थे लोगों को हेल्प करने के लिए, मेडिसिन पहुंचा रहे थे। सो द बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्न वाज कि डोंट वेट टू स्टार्ट वन डे, दैट वन डे इज टुडे। और हमेशा मैं ये भी बोलता हूँ कि जब हम लोग सब जब बातें करते हैं टू गिव बैक टू द सोसाइटी, हम लोग बड़े इंस्पायर्ड हो जाते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं, यार कितना बड़ा ज़रूरी है, हमें करना है, देखो मैं जाके ये करूँगा, पर बड़ा शॉर्ट लिव्ड रहता है। हम लोग घर जाते हैं, फिर बिजी हो जाते हैं, किसी के फ़ोन आने शुरू होते हैं, कोई हम लोग अपने जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें बिजी हो जाते हैं, और कहीं कहीं वो जो ड्राइव होता है वो कहीं ना कहीं वो फेड आउट होना शुरू होता है। एंड देन वी अगेन आप रियलाइज़ करेंगे 1 महीने बाद, अरे यार हम लोग गए थे वहाँ पे सोसाइटी में, एक बड़ा कमाल का फंक्शन हुआ था, वहाँ हमने सुनी बातें, लेकिन अभी आज हमने 1 महीने बाद तो किया तो कुछ भी नहीं हमने। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो आई टोटली बिलीव कि make it a part of your life, very very important. I'm sure you all must be doing it. आप आगे कैसे spread कर सकते हैं? In our schools, in our colleges, there should be one at least lecture where we teach kids from the very first class that you have to give back to the society. जो सिर्फ हम लोग इसी के बारे में बात करें कि बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग अपने बच्चों को कैसे सिखाएं कि बस जो कमाते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए भी होता है। सो आई थिंक दिस ऑल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑल शुड बी गुड लर्नर्स। नीति अपने दुनिया में बहुत कमाल करती है, सीमा जी, सब लोग, नारी सर डूइंग सो वेल, निशा। तो आई थिंक हमें सीखना बड़ा ज़रूरी है कि आप कैसे करते हैं, यार मुझे भी बताओ, मैं करता हूँ। और आई थिंक आई एम ए गुड लर्नर, आप सब लोग बड़े कमाल के लोग हैं। सो आई एम रेडी टू लर्न एनीथिंग। एंड आई रिमेंबर कि जब पहले मैं और नीति मिलते थे तो हम लोग बोलते थे कि हाँ लंच कहाँ करें, डिनर कहाँ करें, हम लोग बोलते हैं कि यार इलाज कहाँ कराएं, हॉस्पिटल कहाँ खोलें। सो आई थिंक वो एक और उसमें मज़ा आता है बातों का। सो आई एम श्योर टुडे the efforts of Narendra sir, Shudh ji, who have got all of us together, which means a lot. I think this is bigger than any award function ever. So at least we talk about others. And मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ सीखी है। मेरे मदर हमेशा कहा करते थे कि कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। So I think बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी मुट्ठी खोलें और शायद हमारे हाथ से किसी का भला होना लिखा हो। एंड आई रिमेंबर कि जब मैं नया आया, कई बार एज एन एक्टर कई बार नेगेटिव रोल्स मिलते थे, कुछ मिलते थे, मैं हमेशा उसका एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने मैनेजर को बोलता था, यार तो एक्शन तो लेके नहीं आता। क्या सर वो लोग पसंद तो बड़ा करते हैं, बोलते हैं यार नेगेटिव रोल करता है, शायद हमारे ब्रांड में कहीं फिट नहीं होता। मैं कोई बात नहीं, रुक गया। फिर पैंडेमिक आया, लोगों की दुआएं जड़ी, तो जितने 3 साल में मैंने ब्रांड जो पिछले 20 साल से जिनके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, उनको 3 साल मैंने स्ट्रगल करवाया साइड में। ब्लेसिंग्स डू टू यू। दुआएं कमाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वही कमाने की कोशिश करते हैं और वही कमाते रहेंगे। एंड आई होप
कि हम लोग ऐसे ही मिलते रहे, ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को इंस्पायर करते रहे, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, still miles to go, but yes, the journey is on. The true Messiah, ladies and gentlemen, Sonu Sood. आपसे ये डेफिनेटली पूछना चाहूंगी, आपने कहा एक एक्टर की लाइफ में लाइट होता है, कैमरा होता है, यहाँ पर वो नहीं था, सिर्फ एक्शन था, लेकिन दो और वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कट इट एंड पैक अप। आपकी इस जर्नी में नॉक ऑन वुड कुछ कट इट पैक अप नहीं लग रहा कि आपने सोचा था ये इतनी लंबी चलेगी, एंड व्हाट इज द जर्नी अहेड लुकिंग लाइक? मैं आपको बताता हूँ, मेरे जब before pandemic, I was shooting for this film called Prithviraj, यशराज की फिल्म थी, and I was very proud to be part of a यशराज film. कमाल का रोल था, 80-90% फिल्म खत्म भी हो गई, और फिर उसके बाद पैंडेमिक आया, कोरोना आया, फिल्म रुक गई, और फिर जब 2-2.5 साल बाद वापस हम लोग सेट पे पहुंचे, तो अचानक वही सेट बड़े छोटे लगने लगे, ऐसे अचानक लगने लगा था यार ये तो बड़ी दुनिया है, यहीं तो करने आए थे, यही तो पंजाब से निकले थे करने के लिए, और फिर अचानक वो सेट छोटे लगने लगे क्योंकि आपने उससे बड़ी दुनिया देख ली थी, उससे बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ मिल चुका था। सो आई थिंक वो मिलना बड़ा ज़रूरी है। वी शुड गेट आउट ऑफ आवर सिस्टम ऑफ वॉट एवर वी आर डूइंग, एंड वी शुड ट्राई टू एक्सप्लोर एंड ट्राई टू चैलेंज आवरसेल्व्स कि वी आर मेंट फॉर better things in life, so that's what we try to do. And now I've just completed, मैंने in fact जो मैं फिल्म कर रहा हूँ फतेह, it's also based on cyber crime, क्योंकि लोगों की जब मैं हेल्प कर रहा था, मेरे नाम पे लोगों ने आज भी चलता रहता है फ्रॉड्स की, हम लोग सोनू से मिलवा देंगे, आप लिंक दबाएं, पैसे हो जाए, तो हज़ारों लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हुए। So when we started getting to the system, 250-300 FIRs भी कराए, और फिर पता चला कि कितनी बड़ी जर्नी है। Then I wrote this script फतेह, डायलॉग्स लिखे सब किए, और अभी नाउ वी फाइनली रेडी, एंड होप फिर मार्च में जब हम रिलीज करेंगे, सो वी विल बी एबल टू स्प्रेड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑन दैट। Of course you will, and we'd like to know a little more from you about Sood Charity Foundation जो आपका है, what exactly does it encompass? सूद चैरिटी फाउंडेशन की शुरुआत पैंडेमिक के बाद हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग उम्मीद से जुड़े, तो मुझे लगा कि करते तो रहेंगे मदद, पर पता नहीं कब तक चलेगी, व्हेन टुमारो इफ आई एम नॉट अराउंड कुछ सालों बाद, सो एटलीस्ट दिस शुड कंटिन्यू, हमारी फैमिली की आने वाली जनरेशंस करते रहे। मुझे याद है कि माय सन्स ईशान एंड अयान, जब मैं नहीं होता तो वो भी नीचे आके लोगों से मिलते हैं, उनके मैसेजेस जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो देर से कि डैडी यार मेरे को किसी का मैसेज आया, उसका फलाना इलाज करवाना है, उसकी पढ़ाई करानी है। सो आई थिंक वो हुआ, नीति इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन, हम लोगों ने सब साथ में किया। सो आई फील कि अभी हम लोग जितने IAS IPS के जितने कोर्सेज और UPSC की जिसको भी तैयारी करानी होती है, पूरे इंडिया में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। इट्स बिन 3 years, करीबन 3-3.5 हज़ार बच्चों को पढ़ा चुके हैं, और भी आई थिंक मुझे याद है कि जब मैंने शुरुआत की थी फाउंडेशन की, मुझे तो पता नहीं था कहाँ से शुरुआत करते, बट जो भी एक्सपर्ट्स थे इसके अंदर, जिनकी फाउंडेशन थी, उन्होंने बोला कि सोनू यार तू हर कुछ करता है, तू कैंसर का इलाज कराने में निकल जाता है, तू लिवर ट्रांसप्लांट भी करवाने निकल जाता है, किडनी भी कराना है, पढ़ाई भी करवा देता है, बाहर भी भेज देता है, बाहर से ला भी आता है, तो ये चलेगा नहीं बहुत देर, पूरा देश जो है ना वो मक्खियों की तरह तेरे पास चढ़ जाएगा और तेरा बंद हो जाएगा काम। तो मैंने बोला सर कि जो आया उसको मना कैसे करेंगे, चलते रहना चाहिए, देखते हैं जब चलेगा तब तक देखेंगे। सो फिर ऑटोमेटिकली सीख भी गए, आ भी गया। अभी ऐसा नहीं कि हमारी फाउंडेशन सिर्फ एक चीज़ में चैनलाइज है, हम सब कुछ कराते हैं, बस लोगों के चेहरों पर मुस्काने लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी बदल जाए। कहाँ होती कैसे होती है पता नहीं। I was going to ask you which of these projects are आपके दिल के सबसे करीब, but मैं नहीं पूछूंगी because you just speak from the heart and that's what your journey is, and I think you explained that beautifully कि ऐसे ही चलते रहे। एक which I would like to also share is मेरी mother का नाम था प्रोफेसर सनू सूद, and she was someone I believe कि जो भी मैं कर पा रहा हूँ उनके कारण कर पा रहा हूँ। तो I always believe कि जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, कई बार उनकी केयर करने वाले लोग नहीं होते, so that was one thing very close to my heart। तो उनके नाम पे सरोज करके एक हमने मिशन शुरू किया, जहाँ पे for almost 600 old age people जो है उनके लिए एक नेरुल में जगह बना रहे हैं, जहाँ पे it's a beautiful place। It's already started, in another 2 years we'll be ready with that, so I think that's going to be something very, very special। That is absolutely special, there is no doubt in that। एक मैं आपसे पूछूंगी, चाहे ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, any project which you'd like to tell us about, share with us, we're all very excited।
आई थिंक ऑन स्क्रीन वाले इतने एक्साइटिंग नहीं होते, सब पीछे देखते हैं, ऑफ स्क्रीन वाले बेटर होते हैं। आई थिंक व्हाट ये ऑफ स्क्रीन का जो हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, कमाल के लोग बैठे हैं, इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं, इससे बड़ा फिल्म नहीं, एंड आई this is better than all those 500,000 crore films. Yes. So I think that makes this evening so special. And that's what makes you a real life hero in every sense of the word. Thank you. आप इतना दिल से बोलते हैं और दिल को छूता है, और बहुत बहुत प्यारी मतलब आपकी पूरी जर्नी रही है, and we really look forward to seeing सूद चैरिटी फाउंडेशन आगे क्या क्या कमाल करती है।